हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 पोएट्री जयशंकर प्रसाद का आंसू द गार्डन ऑफ लोनेलिनेस। देखिए जो आंसू है वो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, लेकिन इसको इंग्लिश में द गार्डन ऑफ लोनेलिनेस का जो नाम दिया है उन्होंने चार्ल्स एस जे वाइट ने दिया है। सो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था चार्ल्स एस जे वाइट ने। चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं पोएम पे। पहले हम थोड़ा सा अबाउट द पोएम आंसू के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर 2-4 पॉइंट इसमें दे रखा है उसे हम पढ़ेंगे, उसी में से क्वेश्चन आ सकता है। इन इट्स वेरी फर्स्ट एडिशन द आंसू हैड 126 स्टैंजा। इट इज़ अ म्यूजिकल एंड सिंगिंग पोएम। इट इज़ फुल ऑफ मेलोडी। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1925 एट साहित्य सदन इन चिरगांव, झांसी। दिस पोएम डज नॉट हैव any division in fragment. There is no episodic narrative in the poem. Nevertheless, the poem is called a fragmental poem or खंड काव्य. In its own time, the poem became so popular that it broke all the standard of popularity. Due to its vast popularity, its stanzas are called as आंसू छंद. आंसू is a poem of pain and separation. Jayasankar Prasad might he had this poem in the loving memory of some beloved or sweetheart, but it was only a inference and nothing could be said with certainty. When Prasad ji was asked about reality, he discarded a controversy in toto. According to him, the base character of the poem is not to the sweetheart but the element of love which the neither male or female. His answer to all this tangle in the stanza is thus. तो ये है पोएम। ओ मेरे प्रेम, ओ मेरे मेरे प्रेम बेहस्ते, तू स्त्री है या कि पुरुष? दोनों ही पूछ रहे हैं कोमल है या कि परुष है। उनको कैसे समझाऊं तेरे रहस्य की बातें, जो तुझको समझ चुके हैं वो अपने विलास की घाते। द वर्क आंसू इज अ लिरिक composed in the form of independent couplets conventionally arranged as a 4-line stanza. The principal theme of these stanza in separation of a lover from his beloved, although some of the verses portray the union of the lovers. Asu tears are emotionally evinced from the pining heart of a lover who seems to have been separated from his beloved or even rejected. He something recalls with pleasure the day he used to spend in the company of his beloved. Some critics have described the poet's state as one of the communion of the soul with God in the transcendental plane or the reverse separation from God. Prasad is an emotional poet and expert artist in Hindi. If someone wants to see this quality in one composition, then he can be directed to study Asu. The poem is attractive for two main reasons. First, the memory of love he has been truly depicted, and second, the method of expression is exquisite. The poem Asu is the representative composition of the Chayavadi age in the epic Kamayani. Prasad final great epic poetry has been subordinated to the philosophy. In poem Asu, philosophy supports the poetry. Of course, the poet wants to relate himself of the agony of the world, but the beauty of the work lies in the union of poetry and art. अपने प्रारंभिक संस्करण में कविता आंसू में 126 छंद थे। यह रचना एक गीति काव्य है, मतलब गाने वाला काव्य है, इसको गा सकते हैं, जिसमें संगीतात्मक की अनुगुंज महसूस की जाती है। यह लय और राग से युक्त है, जिसको हम गा भी सकते हैं, गाया जा सकता है। ये ऐसा पोएम है। वर्ष 1925 में इसका प्रकाशन झांसी के चीरगांव स्थित साहित्य सदन से किया गया था। आंसू में किसी प्रकार का खंड विभाजन नहीं है, आंतरिक कथा सूत्र भी क्षीण है, फिर भी इसको खंड काव्य के रूप में मान्यता मिली है। अपने समय में आंसू की इतनी प्रसिद्धि हुई थी कि अपने लोकप्रियता के सभी मापदंडों को ध्वस्त कर दिया तथा इसकी आशातीत लोकप्रियता के कारण ही इसके छंद को आंसू छंद के रूप में निरूपित किया जाने लगा। आंसू वेदना प्रधान काव्य है। लोगों ने अनुमान लगाया है कि जयशंकर प्रसाद ने अपनी किसी प्रेमिका के विरह में इसकी रचना की, लेकिन यह केवल अनुमान भर था और कुछ निश्चयात्मक रूप से स्थापित नहीं हो सका। जब इसके बारे में प्रसाद जी से पूछा गया तो उन्होंने इस विवाद को निरर्थक बताया। उन्होंने कहा कि आंसू जो है ये काव्य के आधार पर किसी भी पात्र का नहीं है, ना ही नायक है ना ही नायिका, इसमें दोनों हो सकते हैं या दोनों नहीं भी हो सकते। उन्होंने कहा कि आंसू काव्य का आधार पात्र किसी नायिका को ना मानकर प्रेम तत्व को माना है, जो ना नर है और ना ही नारी। ओ मेरे ये तो हमने पोएम पढ़ लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कृति आंसू एक गीति काव्य है जिसको स्वतंत्र दोहों में सृजित किया गया है और सुविधाओं के लिए चौपाई के छंद में विभक्त कर दिया गया है। इन समस्त पद्यांशों का मूल वर्ण विषय प्रेमी का अपनी प्रेयसी से विलग हो जाना है। यद्यपि कुछ पद्यांशों में प्रेमियों के मिलन का भी दृश्यांकन किया गया है। आंसू का आविर्भाव विरह में सिसकते
मन से निकलने वाली भावना से होता है, जब प्रेमी को अपनी प्रेयसी से अलग कर दिया जाता है या फिर प्रेम को ही ठुकरा दिया जाता है। प्रेमी यदा-कदा उन दिनों की खुशियों को याद कर लेता है जब वो परमेश्वर से साक्षात्कार कर रहा होता है। ज्ञानातीत भाव जगत में इसके विपरीत भी हो सकता है, अर्थात परमेश्वर से पृथक्करण। या तो प्रेमी से मिलन हो सकता है या तो यहाँ पे ईश्वर से मिलन की बात की गई है। प्रसाद भावनाओं के कवि हैं जो हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार भी हैं। यदि इन विशिष्टताओं को हम किसी एक कृति में देखने की अभिलाषा करते हैं तो वो आंसू में ही ये सारी विशिष्टताएं उपलब्ध हैं। डायरेक्ट हम देखिए 2-4 पोएम की लाइन भी देख लेते हैं, वो उसी में से आएगा व्याख्या करने के लिए या ट्रांसलेट करने के लिए। ये देखिए, ये है आपका पोएम की कविता आंसू में। क्या हुआ है कि इस करुण कलित हृदय में अब बिकल रागनी बसती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घाते, कल कल ध्वनि से कहती कुछ विस्मित बीती बातें। लास्ट टाइम पे ये एग्ज़ाम में आया था 4th सेमेस्टर के। ये है इसका अनुवाद, ट्रांसलेट किया इन्होंने कि इन दिस पोएटिस हार्ट नाउ द क्रिपल रागनी प्लेज, वाई डज द मून ऑफ इट्स नोट्स स्वेल विथ एन एंडलेस एक, वाई डू द बर्निंग टीयर वेव्स एट द हार्ट सी वर्ज स्पीक देयर टेंडर साउंड ऑफ समथिंग हैपन एंड फॉरगट। तो ये पिछली बार आया था, इस बार तो हो सकता है ये ना आए। इसका जो आने वाला 1 से 2 और भी है पोएम वो आ जाए, तो देखिए इसको देखते हैं, हो सकता है इस बार ये आ जाए। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रति ध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी, क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटका कर दोनों छोरे, चेतना तरंगनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरे। वाई लाइक अ मैड वुमन सेल colliding ricocheting does my echo return repeat from the empty horizon incessantly, while like the Ganges of stars enthused topping over its bank does my consciousness reverse entail waves that yield with the such strain। इसके बाद है आपका मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की किरण, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा, सुख आहत शांत उमंगे बेगार सांस ढोने में, यह हृदय समाधि बना है रोती करुणा कोने में। तो जो पहले आ चुका था उसमें से तो नहीं आएगा, ये जो मैंने 3 पढ़ाया है हो सकता है इसमें से कोई एक आ जाए। द गेम ऑफ अम्यूजिंग द हार्ट enchanting to so deceiving, now the pain of the sweet love gives tremors of the heart, contentment injured desire dead, carrying the breath load druggery, the heart has been made the tomb where pity weeps in a corner। ये पोएम और दे रखा है कि चातक की चकित पुकारे श्यामा ध्वनि सरल रसीली, मेरी करुणादर कथा की टुकड़ी आंसू से गिली, द क्राइव ऑफ सरप्राइज ऑफ द पपीहा ऑनेस्ट ऑरेटिक द कुकू साउंड दिस टू माई पिटी वेट स्टोरी अरे फ्लॉक्स ऑफ मॉइस्चरिंग टीयर्स। इसी हृदय कमल का घिरना अली अलकों के उलझन में, आंसू मरंद का गिरना मिली निश्वास पवन में, इन द टैंगल ऑफ बी लॉक्स दिस लोटस हार्ट एंट्रैप्ड मिड्स इन द ब्रीथिंग इन ऑफ साइट द फॉल ऑफ द नेक्ट्रिन टीयर्स। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी वीडियो जल्दी आएंगी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।